Yeah, this is a very historic moment for Assam since BJP is going to claim, is going to make government for the third consecutive year. And this is going to be the second term of the Chief Minister of Assam, Dr. Hemanta Biswa Sharma ji. He has been doing a very wonderful job in his last tenure, and I'm very hopeful that, and I convey my best wishes to him, and I'm very hopeful that he will do excellently well towards the development of Assam. Since Assam plays a very important role in entire Northeast India, so being a BJP government and NDA government in Assam, it will play a very positive role not only in Assam but the entire northeastern region. Sir, except the Jharkhand entered the Purbanchal and the northeastern region are now under the BJP or the NDA role still, sir. Yeah, yes. So in coming days, by 2029 and after 2029, the political dynamics of entire country will be, ruled by NDA. Since Honorable Prime Minister is doing excellently so well. So no doubt after 2029, the journey of the dynamics will be totally different. It will be full of NDS. Thank you. Okay, thank you. আমাকো মন্ত্ৰী হিচাপে ৰাখি আজি প্ৰথম দিনাই শপত গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে জানেই আজি দিনটো এটা বিশেষ দিন, ঐতিহাসিক দিন, আৰু গোটেই ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত সদায় এই দিনটো এটা স্মৰণীয় হৈ থাকিব। যি ঐতিহাসিক ক্ষণত দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, এম্বেচেডৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ দেশখনৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, উপমুখ্যমন্ত্ৰীসকল উপস্থিত আছে, আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাই লাখতকৈ অধিক জনতা উপস্থিত হৈছে। এইটো আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য। জনসাধাৰণে যি জনাদেশ দিলে, সেই জনাদেশে আমাক আহি থকা দিনবিলাকত ৰাইজৰ হকে আৰু দৃঢ়তাৰে কাম কৰিবলৈ, আৰু অধিক কাম কৰিবলৈ সাহস দিব, মুখ্যমন্ত্ৰীকো সাহস দিব। नहीं, बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, शपथ लेंगे, और हम आज साथ में शपथ लेंगे। तो मैं हिमंत बिश्व शर्मा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण अनुष्ठान में हमारे देश का सम्मानीय आदरणीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और नितिन नवीन जी, केंद्रीय मंत्री, और 20 से अधिक स्टेटों का चीफ मिनिस्टर्स मौजूद है, एम्बेसडर भी मौजूद है, लोग राज्यों का कोने कोने से आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप तीनों बार जब सरकार बनी 2016 से, तब से मंत्री रहे हैं, हैट्रिक में हमेशा शामिल रहे हैं। आगे सरकार की प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? नहीं, प्रायोरिटीज देखिए, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स जिस ढंग से डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने, हमारे गवर्नमेंट ने काम किया है, लोग इसलिए भारी बहुमत दिया है। तो इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया है, और इस 5 बार आप देखेंगे, मैं चाहता हूँ और मैं जरूर देखूंगा, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड होगा असम का लोगों के लिए और देशवासियों के लिए। पहले माँ कामाख्या का दर्शन लेने के लिए यहाँ पे आया था। माँ कामाख्या की पूजा मैंने की। माँ कामाख्या से मांगा कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो विकसित भारत 2047 करने का उनका सपना वो साकार हो। गोवा में फिर से एक बार विकसित गोवा 2037 सपना साकार करने के लिए मुझे शक्ति दे, यही माँ कामाख्या से मांगा। নহয়, আজি আমাৰ বিভিন্ন অতিথি আহিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াসকল বিভিন্ন ৰাজ্যৰ, তেখেতসকলৰ মই প্ৰটকল লগত আহিছোঁ। আমাৰ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত সেৱা কৰিলোঁ, আৰু যেন ভালে ভালে হৈ থাকে। আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰ শপত গ্ৰহণ কৰিব, আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত माँ कामाख्यार आशीर्वादत অসম ভালে ভালে যাই থাকিব। हाँ, आसाम में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी पुनः शपथ ग्रहण कर रही है। माँ कामाख्या के दर्शन में आए हैं। आज सारे यहाँ पर जो अतिथि आए हैं, विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री, मैं भी बिहार के मुख्यमंत्री के साथ यहाँ आया हूँ। आशा रखता हूँ माँ कामाख्या के आशीर्वाद से सब अच्छे हो जाएंगे। तीसरी बार असम में बीजेपी सरकार बनने हाँ, तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। हाँ, बहुमत से यहाँ के लोग आज बहुत खुश है। आज आप माता जी का दर्शन किया, क्या आशा किया आपने? वही जैसे है ऐसा ही रखना है, सबको भी हंसी खुशी, आप लोगों को भी। बहुत खुशी
महसूस हो रहा है। आज तो एक ऐतिहासिक दिन है। एनडीए का ये थर्ड टाइम गवर्नमेंट है असम में, और हमारा डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, उनका सेकेंड टर्म इस बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण है। तो इस ऐतिहासिक दिन में मुझे भी मौका मिला मंत्री हिसाब से शपथ लेने के लिए। बहुत मन में अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, ठीक। So it is a great privilege for me to be a member of Dr. Himanta Biswa's cabinet. So I give my gratitude to my leader, Dr. Himanta Biswa Sharma. At this great moment, I can say this only, that we will try our level best to work for the betterment of our state, so that Assam can contribute to the growth and economy of our country. असम में फिर से बन रही है, और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिनों दिन एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की उन्नति हो रही है। लोगों का विश्वास जीतने में वो सफल रहे हैं, और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने भी बहुत बड़े पैमाने पर विकास करके पिछले 5 वर्षों में ये दिखा दिया है कि असम भी भारत के अन्य राज्यों की तरह कहीं पीछे नहीं बल्कि आगे जा रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और उस सफलता की वजह से आज यहाँ पर इतनी बड़ी अप्रतिम विजय हुई है। ये बहुत ही खुशी का दिन है। तीसरी बार असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर और हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी पर जो विश्वास हिमंता बिस्वा शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, और पूरे एनडीए का हार्दिक अभिनंदन। तीसरी बार लगातार सरकार बनी है, हैट्रिक कायम हुई है और शानदार तरीके से जीत हुई है। ये दिखाता है कि जब जिस तरीके से एनडीए की सरकार ने एक शांतिपूर्ण वातावरण कायम किया और विकास का एक नया अध्याय लिखने का काम किया, उसने जनता के भरोसे को जीता है, और जनता ने अपने विश्वास की मोहर तीसरी बार लगाई है। तो नई टीम को एक नए कार्यकाल के लिए बहुत सारी बधाई। प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति कितना बड़ा मौका होता है जब उत्साहवर्धन के लिए प्रधानमंत्री? बहुत बड़ा अवसर है, और मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इन 12 वर्षों में जिस तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, पूरे पूर्वोत्तर राज्यों की जनता के प्रति हमारी सरकार के कमिटमेंट को बार बार यहाँ आकर और नई नई विकास की परियोजनाएं देकर उस संकल्प को कई बार दोहराया है। लोगों के अंदर एक विश्वास और उम्मीद जगी है, और यही कारण है कि एनडीए को तीसरी बार जनता का आशीर्वाद मिला है। तो आज प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति एक बार फिर नई ऊर्जा का संचार करेगी, लोगों के विश्वास को और प्रकट करेगी कि जो वादे हमने किए हैं हमारी सरकार ने, एनडीए परिवार मिलकर उसे पूरा करेगा। जी नमस्ते। नमस्ते। बड़ा मौका। जी जी जी। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का गरिमामय उपस्थिति में कुछ ही क्षण बाद असम में तीसरी बार के लिए भाजपा नेतृत्व में एनडीए सरकार शपथ लेगा, और असम के विकास में जिन्होंने बीते 4 दशकों में करीब बड़ा योगदान सुनिश्चित किया है, ऐसे हमारे दूसरे बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के प्रति जो लोगों ने एक विराट एक जनादेश दिया है, उस जनादेश आज इसका प्रमाण है, और हम बहुत ही आतुर है शपथ ग्रहण अनुष्ठान के लिए। और निश्चित रूप से आज लाखों लोग पूरे आसाम से आए हैं इस ऐतिहासिक जो मुहूर्त है उसका साक्षी होने के लिए। सर, प्रधानमंत्री जी भी मौजूद हैं, कितना बड़ा मौका, एक बड़ा बहुत बड़ा। आसाम के हिस्ट्री में ये पहली बार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सहित सभी वरिष्ठ हमारे नेतागण और 22 राज्यों के मुख्यमंत्री, 28 उप मुख्यमंत्री, 15 से अधिक कैबिनेट मंत्री केंद्र के और अलग अलग प्रदेशों से आए हुए जो हमारे मंत्रीगण और उद्योगपतिगण, हमारे संत महंतगण, सभी जो कार्यकर्ता बूथ लेवल से आए हुए हैं, ये एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने के लिए सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं। हम हृदयपूर्वक सभी को यहाँ पर असम भारतीय जनता पार्टी के ओर से उनको स्वागत करता हूँ, और आने वाला समय में जैसे हमको समर्थन प्यार दिया है, ऐसे ही आने वाला समय में हमारे सरकार जनता के प्रति दायबद्ध होकर के, और हमने जो संकल्प पत्र में एक एक बिंदु विषय असम के लिए हमने
एक हमने रखा है, प्रोमिजेस किया है, उस प्रोमिजेस को हम एक एक करके एक प्रायोरिटी के साथ हम उसको एड्रेस करेंगे।